Very good afternoon, everyone. This is Ikhlaqullah. So basically, today's video is on one question that I want you should understood. Its question is regarding the topic lack of prawn. This question is from the topic lack of prawn, which comes under gene regulation, which comes under gene regulation of prokaryotes. Okay, so this is the topic of gene regulation of prokaryotes. Molecular, it's a molecular biology topic which is very important to understand. So this question I found very fascinating and like very interesting one. So I thought to discuss with you all. So let's start with the question. As you can see, this is a question already you can see on the display. It is visible to you. Yeah, this is a question which is visible to you. Now we'll start. Now, what is the question? Let us first read the question. Always before attempting any question, we should fully understood that question. What does that question mean to you? It's not like questions are simply put forward to you. It's a meaningful question. Okay, so now let us see what does it mean. So first, we'll go with a scientist, like one of the scientists doing the experiment using an ampicillin sensitive strain of bacteria. What do you mean by ampicillin sensitive strain of bacteria? It is a strain of bacteria which can be affected by antibiotic. Okay, which can be affected by ampicillin is an antibiotic. What is ampicillin? It is just an antibiotic which can affect the growth of bacteria. Okay, that cannot use lactose, which cannot use lactose. So lactose को use नहीं कर सकता है अपने growth के लिए. Why it cannot use? Because scientists has done the mutation in it gene, non-functional gene in the lac operand. Okay, क्या कर दिया उसके बैक्टीरिया में नॉन फंक्शनल जीन कर दिया, उसको म्यूटेंट कर दिया है. अब वो लैक्टोज को यूज नहीं कर सकता है अपनी ग्रोथ के लिए. ओके, अब उन्होंने क्या किया, वन कंटेन्स अ फंक्शनल कॉपी ऑफ द अफेक्टेड. अब उनके पास फर्स्ट वी विल सी हैज टू प्लाज्मिड. उनके पास दो प्लाज्मिड थे. ठीक है, उन्होंने क्या किया, let me show you graphically. One plasmid and another plasmid. Okay, she has two plasmid. We can say plasmid 1, 2, and to this we can say plasmid 2. Okay, so she has two plasmid. Okay, one contain a functional copy of the affected gene lac operand. एक प्लाज्मिड पे ऐसी कॉपी थी जिस पे लैक ऑपरेंट काम कर रहा था. ओके, where the lac operand work. Okay, lac operand 1 work. Okay, and the other contains a gene for the ampicillin resistance. One has the gene for ampicillin resistance, मतलब antibiotic, ampicillin resistance gene था एक पर. Okay, so what she did, using a restriction enzyme, she used a restriction enzyme. Basically it is a recombinant DNA technology which we will study further in our upcoming videos. I will try to show you regarding to that. And DNA ligase. Okay, she used what, restriction enzyme and DNA ligase. She form a recombinant plasmid. She used to recombinant these both and form a one plasmid. Okay, she formed a one plasmid. Where is lac operand? Okay, and ampicillin resistant जीन. एक प्लाज्मिड बनाया जिसपे क्या था, लैक ऑपरेंट था और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था. ओके, वी कैन से जस्ट अ मिनट, वी कैन से ओके, वी कैन से दिस इज फॉर द लैक ऑपरेंट जीन एंड दिस इज अ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. ओके, उन्होंने एक ऐसा प्लाज्मिड बना लिया. हमारा ये वाला प्लाज्मिड तैयार हो गया. Okay, फिर she then adds a high concentration
ऑफ द प्लाज्मिड टू अ ट्यूब ऑफ बैक्टीरिया इन द मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। अब उन्होंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को क्या किया, बैक्टीरियम में डाला। बैक्टीरियम का एक ट्यूब था, उसमें इस प्लाज्मिड को इंसर्ट करा दिया। ठीक है, एक मान लो इसको ऐसा एक ये ट्यूब था, दिस इज एक ट्यूब। ठीक है, अब प्लाज्मिड टू ट्यूब ऑफ बैक्टीरिया, इसमें ऑलरेडी क्या थे, हमारे बैक्टीरिया थे। अब इन्होंने इसमें क्या किया, प्लाज्मिड डाल दी। क्या डाल दिया, हमारा प्लाज्मिड डाल दिया। ठीक है, जो क्या कंटेन करता था, ग्लूकोज कंटेन करता था एज द ओनली एनर्जी सोर्स। ओके, जिसमें क्या था, खाली हमारा ग्लूकोज था, ओनली ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज था एज द एनर्जी सोर्स को, मतलब एज द एनर्जी सोर्स जो कि बैक्टीरिया यूज कर सकता था। जस्ट मिनट में हट जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ओनली क्या था, ग्लूकोज सोर्स था इस वाले कंटेनर में। दिस ट्यूब, उसने नाम दिया पॉजिटिव। इस ट्यूब को उन्होंने कैसा नाम दिया, पॉजिटिव नाम दिया। है ना, कंट्रोल ट्यूब, एक ट्यूब और लिया उन्होंने, वन ट्यूब ऑल्सो दे टेक। ओके, व्हाट डिड दे नेम, उसको नेम दिया नेगेटिव विथ सिमिलर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो सेम डाला, हमने पहले पढ़ा था कि उन्होंने एक बैक्टीरिया का एम्पिसिलिन, जस्ट अ मिनट, हमने पहले पढ़ा था उन्होंने एक बैक्टीरिया का एम्पिसिलिन सेंसिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया था जो लैक्टोज यूज नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि उसमें नॉन फंक्शनल जीन था, क्या, लैकोप्रिन। मान लो, ये मान ले, ये किसका है, हमारा बैक्टीरिया का जीन है। ठीक है, इस पे जो लैक ऑपरेन है, क्या है हमारा, लैक ऑपरेन है, ये कैसा है, नॉन फंक्शनल है। कैसा है, नॉन फंक्शनल, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा तो लैक्टोज ये यूज नहीं करेगा। ओके, और हम देख रहे थे उन्होंने एक और लिया विथ सिमिलर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसमें क्या है, सिमिलर है, बट नो प्लाज्मिड। इसमें इन्होंने क्या करा, प्लाज्मिड नहीं डाला, प्लाज्मिड को नहीं डाला। ठीक है, नो प्लाज्मिड आर बोथ इंक्यूबेटेड अंडर द सेम अप्रोप्रिएट कंडीशन। सेम उन्होंने क्या दिया, टेम्परेचर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, सेम टेम्परेचर दिया। जस्ट अ मिनट, ओके ओके, नाउ इट विल बी आई थिंक फाइन। उन्होंने क्या किया, सेम टेम्परेचर दिया। ठीक है, सेम पीएच पे रखा उसको, सब कुछ सेम कंडीशन दिया। कंडीशंस आर सेम फॉर बोथ, सेम कंडीशन दिया दोनों के लिए। इसके लिए भी यही कंडीशन थी और इसके लिए भी यही कंडीशन थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि द साइंटिस्ट देन स्प्रेड अ सैंपल ऑफ ईच बैक्टीरियल कल्चर। उन्होंने कुछ सैंपल इससे भी लिया और कुछ सैंपल इससे भी लिया। ठीक है, ऑन थ्री ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लेट्स, तीन प्लेट्स पे उन्होंने लिया। ठीक है, कौन कौन सी वो टाइप प्लेट है, आइए हम देखते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इन्होंने तीन प्लेट्स ली। ओके, दे यूजेस व्हाट, जस्ट अ मिनट, या नाउ आई कैन एक्सप्लेन यू वेल। थ्री प्लेट दे यूज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड प्लेट, दिस इज द थर्ड प्लेट, दिस इज द फोर्थ प्लेट, दिस इज द फिफ्थ प्लेट एंड दिस इज द सिक्स्थ प्लेट। ओके, तो दे यूजेस सिक्स प्लेट। व्हाट डिड डू, फर्स्ट दे यूज द पॉजिटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल को उन्होंने किस में डाला, ग्लूकोज मीडियम में डाला। किस में डाला, ग्लूकोज मीडियम में। ओके, तो बैक्टीरियल स्ट्रेन विथ एडिड प्लाज्मिड, बैक्टीरियल स्ट्रेन भी था इसमें और प्लाज्मिड भी था। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट put that thing here. All right, now I'll come back to my position. Yeah, ठीक है, तो उन्होंने क्या, पहली प्लेट में सिर्फ ग्लूकोज मीडियम रखा था। जब इसमें डाला तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, आपको ये बताना है। ग्रोथ विल हैपन और नॉट, ये बताना है। क्या डाला, बैक्टीरिया डाला। ठीक है, जो कि लैक ऑपरेन किया था, नॉन फंक्शनल था। पर एक प्लाज्मिड भी साला डाला जिसमें क्या था, लैक ऑपरेन फंक्शनल था। लैक ऑपरेन क्या था, फंक्शनल था।
लैक ऑपरेंट फंक्शनल था इसमें, और क्या फंक्शनल था, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमारा दोनों फंक्शनल थे। ठीक है, ये दोनों क्या थे हमारे, फंक्शनल थे। लैक ऑपरेंट भी फंक्शनल था और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी हमारा क्या था, फंक्शनल था। ओके, तो पहली प्लेट में डाला तो लैक ऑपरेंट ने यहाँ क्या किया, ग्लूकोज, अगर लैक ग्लूकोज नहीं भी होता तो भी लैक ऑपरेंट लैक्टोज होता तो उसको यूज कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ क्या हुई। ठीक है, सेकेंड वाला क्या था, ग्लूकोज मीडियम विथ एम्पिसिलिन, ग्लूकोज मीडियम था एम्पिसिलिन के साथ। ठीक है, अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है हमारे पास, तो इस पे एम्पिसिलिन का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, एम्पिसिलिन का यूज नहीं होगा, ग्लूकोज मीडियम है, तो यहाँ भी क्या होगी हमारी ग्रोथ कंफर्म होना है। ऑप्शन था ग्लूकोज मीडियम विथ एम्पिसिलिन एंड लैक्टोज। अब लैक ऑपरेंट वर्किंग है, ठीक है, और ग्लूकोज मीडियम है, ठीक है, एम्पिसिलिन है, और एम्पिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी तीसरी प्लेट पर। क्यों, क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमारे प्लाज्मिड के पास ऑलरेडी था, जो कि इंटीग्रेट किसमें हो गया है, अब हमारा प्लाज्मिड बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है प्लाज्मिड आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। ठीक है, इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, चौथी प्लेट थी। अब चौथी प्लेट में क्या, बैक्टीरियल तो है, बैक्टीरिया तो है, पर ये प्लाज्मिड वाला हमारे उसके बैक्टीरिया में इंटीग्रेट नहीं है। अब ये खाली ऐसा बैक्टीरिया है, ओनली दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये ओनली दिस। ओके, सिर्फ यही वाला हमारे पास जीनोम है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज मीडियम डाला, ठीक है, तो ग्रोथ क्या होगी, हो जाएगी, ग्रोथ विल डन। क्यों ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें ना एम्फिसिलिन है और इसमें सिर्फ क्या है अभी, नाउ व्हाट इज इट, ओनली इट इज ग्लूकोज, सो बैक्टीरिया विल यूज द ग्लूकोज फॉर इट्स ग्रोथ। ओके, लैक्टोज तो है नहीं। दूसरे में क्या है, ग्लूकोज मीडियम विथ एम्फिसिलिन। अब इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज है बट एम्फिसिलिन के साथ है, तो एम्फिसिलिन काम करेगा इस पर। क्यों काम करेगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसमें नहीं है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसमें नहीं है। ओके, सो इसमें नो ग्रोथ, इट विल शो नो growth in this. Okay, now we'll come to the sixth plate, plate number 6. Okay, what we see here, bacterial strain with no plasmid, ग्लूकोज दिया है इन्होंने, एम्पिसिलिन भी दिया और लैक्टोज भी दिया। लैक्टोज भी दिया तो लैक ऑपरॉन इसमें काम कर नहीं रहा है। ठीक है, एम्पिसिलिन दिया तो एम्पिसिलिन ने अपना काम कर दिया, इसको क्या कर दिया, गिल कर दिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक दी, एंटीबायोटिक के जरिए काम किया। तो यहाँ भी क्या देखने को मिलेगा हमें, नो ग्रोथ। क्या देखने को मिलेगा, नो ग्रोथ हमें देखने को यहाँ मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज द, इफ नो न्यू म्यूटेशन अकर, मान लो कोई नया न्यू म्यूटेशन नहीं होता है, it would be reasonable to expect bacterial growth in which of the following plates? Scientist is asking, I'll show you the question. Just a minute. Okay, now you can read the full question. Bacterial growth on which of the following plates? Okay, which of the following plates? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया कौन सी प्लेट पर ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ हम देख चुके हैं, प्लेट नंबर 1, 2, 3 और 4 पर हमारी ग्रोथ हो रही है, 5th और 6th पर ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, तो 1, 2 है ही नहीं, ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, वी हैव राइट ऑप्शन द डी। ओके, so this is a very like types, you can say section part C question type, which is I take from Pathfinder book by Praveen Sharma it is. So it's a very interested question, that's why I tried to share with you, and I will be sharing more this type of questions in the upcoming videos along with you. Hope to get support from you all. Thank you so much. We will coming with the next video soon. Hope you like this video, and you can comment for any help, or like if you want to discuss with me anything, you can discuss regarding it. Thank you so much, friends.